جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے۔ کل 8 فروری ہے، بالآخر پتھر پر لکیر، وہ دن آ ہی گیا کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان میں۔ اور کل پاکستان کے عوام نے گھروں سے نکلنا ہے، ووٹ کے لیے نکلنا ہے، پاکستان میں جمہوریت کے لیے آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے اور اپنا یہ حق آپ نے ضرور ادا کرنا ہے۔ ہماری جو ڈسکشن ران سب چل رہی تھی، ابھی ہم نے ذرا سرور باری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، پاپن سے آپ سابق ان کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، اور جو الیکشن پہ آپ لوگ نظر رکھتے ہیں، بے ضابطگیاں، بے قاعدگیاں، الیکشن ڈے پہ کیا ہوا، الیکشن سے پہلے کیا ہوا، الیکشن کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے، مختلف پاکستان کے الیکشنز کو آپ نے کور کیا اور اس پہ رپورٹس بھی بنائی۔ السلام علیکم باری صاحب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں ڈسکشن میں۔ کل کے ذرا الیکشن 2024 کے الیکشن کی بات کریں، 8 فروری، اس 8 فروری سے پہلے آپ نے کیا دیکھا اور 8 فروری کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو 8 فروری سے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی خوش آئند نہیں ہے، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جو ہماری گینز تھیں پچھلے 30 سالوں میں ہم نے جو حاصل کیا تھا اس کو ریورس گیئر لگا ہے، اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اور مجھے بڑے دکھی دل کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں کہ پچھلے تقریباً اپریل 2022 سے لے کر اب تک جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور زیادہ تر خلاف ورزیاں جو ہے وہ ہماری ریاستی اداروں کی طرف سے ہوئی ہیں، تو یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ اچھا باری صاحب، کیا آپ تو چونکہ مسلسل کئی دہائیوں سے ہم الیکشن کور کر رہے ہیں، آپ اس الیکشن کو سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں بہرحال جو عوام کی پارٹیسپیشن چاہے ویسے نہیں ہوئی لیکن کل کے دن نظر آئے گی؟ اجازت نہیں دی جا رہی، اور آج تک یہی ہو رہا ہے۔ اور دھاندلی کے ہم نے 163 طریقے جو ہے وہ تلاش کیے تھے جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں، اور اب تو اس میں اور بھی 20-30 شامل ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے جو آج تک کی صورتحال ہے اس کے مطابق میرا کنکلوژن یہ ہے کہ جو ابھی تک کا پروسیس ہے وہ تو بالکل انکلوسیو نہیں ہے۔ ایک پارٹی کو بالکل کارنر کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ہر آئینی اور غیر آئینی اور غیر قانونی جو کام، غیر اخلاقی کام کیا گیا ہے۔ صحیح۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کل کے بعد کیا ہوگا، تو پہلی بات تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں انفارم کیا ہے، کیونکہ ہم ایک نیشن سروے کر رہے ہیں، کہ ان کے فیملی کے ووٹ سبٹریٹ کر دیے گئے ہیں۔ جی جی، چلو پولنگ اسٹیشن کی حد تک نہیں ہے، حلقہ بھی چینج کر دیا گیا ہے، بیٹے کا ووٹ کہیں ہے، بیٹی کا ووٹ کسی اور کانسٹیچوئنسی میں ہے، بیوی کا ووٹ اور کہیں ہے، اور خاوند کا ووٹ کہیں اور ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی میری نظر میں تھوڑی تھوڑی دھاندلی ہر مرحلے پر، ہر پولنگ بوتھ پر، ہر پولنگ ایریا میں مائکرو لیول پر ہو رہی ہے، اور تاکہ اس کا ایک میکرو نتیجہ، جو مثبت نتیجہ ہے جو ضیاء الحق نے کہا تھا، وہ ان کو حاصل ہو سکے۔ تو اس لیے یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکشن ہے غالباً 1977 کے بعد، جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ فیئر ہے، نہ فری ہے، نہ ٹرانسپیرنٹ ہے۔ بالکل۔ ابھی سے ایسے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل کا جو الیکشن ہے ابھی سے، کیونکہ متنازع ہونے کے حوالے سے سیاسی جماعتیں بھی اسی طرح کی ڈیبیٹ کرتی ہیں، تو اگر یہ سینیریو بنتا ہے تو کیا پھر ایک تو چلیں الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، پھر الیکشن کو نتائج نہ ماننا، پھر اس کے بعد بھی یہ ہم سینیریو دیکھیں گے کیا؟ بالکل، دیکھیں اگر چھوٹی سی دھاندلی کے اوپر 2013 میں ہم نے دیکھا تھا JJOIF والے سندھ میں ہنگامے کر رہے تھے، شور مچا رہے تھے۔ 2018 کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیپل پارٹی، PMLN، JJOIF سب لوگ شور مچا رہے تھے کہ الیکشن جو ہے وہ رگڈ ہوئے ہیں، RTS سسٹم کو بٹھا دیا گیا۔ تو اب تو بہت بڑی کمپریہنسو ہولسٹک جو ہے وہ ایک مینیپولیشن ہے، اور ہولسٹک جو ہے وہ ریگنگ جو ہے، میں امید کرتا ہوں کل جو ہے وہ آرڈرلی الیکشنز ہوں گے، پولنگ جو ہے آرڈرلی ہوگی۔ لیکن جو خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے ایک پارٹی پہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کے شناختی کارڈ ضبط کیے جا رہے ہیں، اور لاہور میں تو ووٹ بائنگ کا جو سلسلہ ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کتنے بڑے لیول پر جو ہے
वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही है। बारिश साहब हमारे साथ ही रहिएगा, कई घंटों तक बंद रहा है। ठीक, हमारे साथ रहिएगा बारिश साहब, हमारे साथ रहिएगा। मैं चाह रहा था फायदा आई है, हाँ, फायदा को भी वेलकम कहते हैं। और माशाल्लाह आज देखें फायदा तो प्यारे कलर में, फायदा जबरदस्त, कल भी फायदा ने बड़ी तैयारी की थी। कलर उन्होंने ये तो ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन की चांद रात बना रही है। बेसिकली राना साहब चांद रात तो कल ही होगी थी, एक पिक्चर वायरल होने के बाद तो मैंने कहा पाकिस्तानियों को सबूत है, मैंने ताहिर मलिक साहब ने कुछ ऐसे ही कलर पहने। वो कौन सी तस्वीर? हाँ मेरे से बड़ी पाकिस्तानी है जरा, मेरा क्यों थोड़ा सा नहीं, कौन सी तस्वीर में? कैदी 804 की तस्वीर का जिक्र कर रही है। क्या बात है, वो जेल से वायरल हुई है एक पिक्चर, वो उसका अच्छा जिक्र मैं कर रही है। पॉलिटिकली सोच रहा था अगर ये कैदी के ड्रेस भी होती मैंने बड़ी मुश्किल से 420 का लफ्ज रोका, मैंने कहा नहीं वो ऐसा ना कपड़े बीच पहने। नहीं मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, हमदर्दी और बढ़नी थी, मेरी राय ये है। बारिश साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का मलिक साहब, लेकिन एक बात तो है तस्वीर का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जो ये रोमर्स थी कि पता नहीं अंदर क्या क्या उस तस्वीर से एक ये मैसेज तो गया कि भाई वो अंदर बिल्कुल ठीक है और हशाश बशाश है, और उनकी शक्ल से लग रहा था कि वो तो कहीं स्विट्जरलैंड की सैर कर रहे हैं जिस तरह के वो अडयाला जेल की मैं जाती वाले से मेरे लिए सबसे जो हमें बताया गया था ना, खास किस्म की एक मेडिसिन चाहिए, हाँ, अच्छे बिल्कुल, अल्फाज वो नशा करते हैं, सीधा कहें ना। जो एक चीज आई ना भुट्टो के बाद, जो दूसरी पॉलिटिकल, मैं इसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट समझता हूँ कि हमारे यहाँ बड़ी तनकीद है कि हमारा पॉलिटिशियन जो है ना बड़ा स्विच करता है, उतने थले आता है। मैं समझता एक चीज मानने वाली है, एक सस्टेनेंस नजर आई है, एक इस्तेकाम नजर आया मुझे, मेरे ख्याल में लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। अच्छा निशात साहब, जो हमारी सियासी कायदीन है जैसे ये कह रहे हैं, ये जो अभी इलेक्शन कैंपेन हुई इसमें जलसे हुए आसमा साहब और बड़ी तकरीरें हुई, बिलावल साहब ने बड़ी आला तकरीरें की, मियाँ साहब, मरियम साहिबा बेसिकली देखा जाए तो नून लीग की क्राउड पुलर हैं, वो नवाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा लोग उन्हें सुनते हैं। ये जो नफ्सियात है ऑडियंस की या सुनने वालों की, इसको भी पकड़ना हर एक का काम नहीं है। आप किसको क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन कैंपेन में उसने अपनी तकरीरों से एक अपना बनाई जगह बनाया? देखिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब बिलावल साहब ने कैंपेन स्टार्ट की थी तो इसमें कोई शक नहीं, चौधरी साहब ने भी आपको बताया था कि एक्चुअली जो आपको इंतखाबी माहौल के बारे में एक आइडिया जो दिया गया था वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मोमेंटम उन्होंने बनाया, मोमेंटम बनाया था। लेकिन मैं आपसे ना थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम आती है, देखिए मैं चूँकि जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मेरा अगर आपके साथ इख्तलाफ है या हम किसी चीज़ के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं तो मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं आपके ऊपर उंगली उठाऊं या आपके पर्सनल मामलात पे या आपकी जो एक्टिविटी है उस पर बात करूं। अब होता क्या है, हमारे यहाँ 80% तकरीर जो है आप किसी भी सियासी जमात के लीडर की उठा लें, वो एक्चुअली बेस कर रही होती है क्रिटिसाइज करने पे, उसको बुरा बनाने पे। एक्चुअली इट शुड नॉट बी कि वो बयानिया नहीं होता, वो मेन चीज तो अपनी बात तो ये है कि आप कहेंगे कि जनाब, मैंने जिस तरह पहले कहा था कि आप ये कहेंगे जनाब कि अब देखिए ना किन किन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। हम डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े हुए थे, बिल्कुल हम बमुश्किल अभी भी अगर आप मुझसे पूछें मईशत का तो हम वो, मैं अगर सही बात पूछे तो मैं ये भी नहीं कह पाता कि जी हम जो आईसीयू से निकल के आ गए, चलो एक तसल्ली के लिए आज के लिए हम कह दें कि जी कुछ थोड़ा सा हम बेहतर हो गए हैं, पाँव अभी नहीं चलना शुरू हुए, चलना तो बहुत दूर की बात है, अभी बेड से भी नहीं उतरे। अब इन हालात के अंदर आप ये नहीं बताएंगे कि हम अगर फर्ज करें हमें 5 साल दिए जाएं, हम किन फेजेस के तहत आपको इस मुश्किल से निकालेंगे। मैं कल आपने जब मुझसे पूछा था ना कि आपको मंशूर में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद आई, तो मुझे एक ही बात पसंद आई थी, महंगाई 4 से 5% कर दें। बाकी सारी बातें मैं आपसे बाद में करूंगा, लेकिन पहले जो मेरे जिंदा रहने में जो मेरे गले में हड्डी की तरह बन गई है उससे तो मैं निकल पाऊं। सो बेसिकली जिस किसी ने भी ये तकरीर की है, जिस किसी ने भी बात की है, वो क्रिटिसिज्म पे बेस करती है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में बेस करती है। हालांकि 80% तकरीर, और हाँ मैं समझता हूं कि आपको हजूम को भी गरमाना है, आपको किसी हद तक जो है ना अपनी स्पीच का वो भी करने के लिए एक मोमेंटम बनाना होता है, ये सारी बातें दुरुस्त है। लेकिन अगर इस रेसिपी के अंदर अगर आप में 80% आप कीचड़ उछालने पे गुजारे हैं, 10% जो इधर उधर की बातें जो लवाजमात पूरे करने में, ये मिसाला, और 10% आप काम की बात करें, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि अवाम में मायूसी बढ़ती है। हमारी डिबेट भी सिर्फ बयानात की हद तक रह जाती है। हम भी ये राणा साहब ने भी सवाल करके यही पूछा कि बयान किसका ज्यादा तुमको तेज हो सकता है या वो हो जाता है, आपने तो बता इस तरह चला गया। राणा साहब, आपको किसकी अच्छी तकरीर लगी? आपको लगा कि कोई वाकई यार ये बहुत बड़ा लीडर है, बड़ी जबरदस्त बात करता है, क्राउड को एंगेज करता है? किससे आप ज्यादा इंप्रेस हुए इस तमाम तर जो जलसे आपने देखे? देखिए अभी जो निशात साहब बात कर रहे हैं ना कि हम डिफ़ॉल्ट से निकल आए, डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ है? क्या पाकिस्तान के अवाम
उनकी जिंदगी में कोई जरा सी रत्ती बराबर भी बेहतरी आई, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, और बच्चियां हमारी उनके सर में चांदी उतर आई है, ठीक है, हमारे बच्चे डिग्रियां लेके फिर रहे हैं और उन्हें मुलाजमतें नहीं मिल रही, पूरी कौम भूख का शिकार है। आपने उनके ऊपर गैस का अजाब डाल दिया, आपने उनके ऊपर बिजली का अजाब डाल दिया, आपने उनके ऊपर पेट्रोल का अजाब डाल दिया, आपने उनके ऊपर आटे का अजाब डाल दिया। और हमारे ये सियासतदान जो बिलावल की आप बात कर रहे हैं या मरियम की आप बात कर रही हैं, ये इतने, आई एम सॉरी टू से, मैं लफ्ज ड्रामाबाज कहते कहते रुक गया कि आप, पूरी कौम भूखी मर रही है यार, है, आप उन्हें कह रहे हो जी 300 में वो देंगे यूनिट, और तुम्हारी औकात इतनी है कि 15 अरब रुपए की सब्सिडी नहीं दे सके गरीब लोगों को तुम, है, IMF ने कहा तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अपनी मर्जी कर सको, तुम 300 यूनिट दोगे यार, ऐसी मकाना सी बातें। और फिर मैं तो बिलावल को इसलिए सीरियस नहीं लेता कि उनका अब्बा भी सीरियस नहीं लेता उसे, कहते हैं बच्चा है, ठीक है ना, बच्चा है, उनके गुब्बारे में से तो फूक वो खुद निकाल देते। अब वो कह रहे हैं कि आइंदा हम नवाज शरीफ के साथ नहीं बैठेंगे, वो चे पिद्दी शोरबा यार, तुम कब फैसला करोगे? आप वैसे देख रहे हैं 9 फरवरी के बाद ये सब इकट्ठे हैं, सुन ले, आपने देखा ये आपको अभी एक मिनट में बताता हूँ, आपको पता है IMF बाहर आके खड़ा हो गया इनकी तकलीफ तरले कर रहा है, राणा साहब चुप कर दे प्लीज, हम सब कुछ दे देंगे, आपको ठहरे ना ठहरे, अभी वो भी हो गया होगा, आपने देखा है वो दो कितने बच्चे बताते थे, 2 करोड़, मैं 2 करोड़ 62 लाख को एडमिशन मिल गया इनकी तकरीर के बाद। आप देखे बाहर जो है ना ऐसे फल और सब्जियां मनोसलवा उतर रहा है इनकी तकरीर के बाद, जो इन्होंने तकरीर की है, बच्चों में पंजी हो रहा है। मुझे ये पता है दाखला मेरी बात से IMF खड़ा ना हो, लेकिन नौशाद साहब जरूर खड़े हो। बात ये है कि रीजन ये कि इनसे इनसे हकीकत जज्बातियत क्या, लोग भूखे मर रहे हैं, आप जज्बातियत क्या भाई, आप यहाँ खागा बाबा करेंगे तो लोगों ने को खानूनी का तुसी जज्बातियत बढ़ गए। अगर कोई गरीब की बात करे, भूखे की बात करे, नंगे की बात करे, तो आप कहते हैं जी जज्बातियत है। समोसा आ गया तो प्लेट, ठीक है, कौम को नवाज दो और चुन लो, चुन्नू मुन्नू को चुन लो, आप लोगों को बेवकूफ बनाने की बात। अच्छा, आपको किसकी तकरीर अच्छी, आज सब जरा ये पूछ लेते हैं, मुझे तो राणे की तकरीर अच्छी। मैं तो मलक साहब और निशात साहब से हैरान हूं, आपके साथ हूं। वो इन्हीं की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गले की हड्डी महंगाई बन गई, वो इन्हीं की बात कर रहे हैं, और वो गरीब नहीं है ना, वो भाई उन्होंने दाने ने ना, वो ऐसे नहीं सियाने ने, देखिए होता हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, उनके घर में बिल जो नहीं उतरते, आपके पॉलिटिशियन उन्हें बिल जो मिल जाता है वो करा लेते जमा, उनके पास पैसे हैं। बात मैंने भी वही कही थी, नहीं राणा साहब भी वही कर रहे हैं, लेकिन कार्य जिस तरह आटा खरीद सकते हैं, वो बिजली का बिल दे सकते हैं, वो सारा महीना गैस चला के गैस का बिल दे सकते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल, उनका क्या ताल्लुक गरीब आदमी से भाई? इनके बच्चे जो इनका क्या ताल्लुक उन भूखे मरते हुए बच्चों से? इन्हें तो दुख होगा कि उसकी कोई बात कर रहे हैं, अजीब बात करते हैं। आपने मैं पानी पी लेता हूँ, मेरा ख्याल है कि मेरी बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि मैंने गरीब की बात करनी है, बयान की बात है यार, थोड़ा इस अंदाजे बयान के मरियम के ऊपर तो आप भंगड़े डालते हैं, इस अंदाजे बयान पे। मैंने तो हर एक को तो मैंने किसी का नाम लेके कहा कि ये गलत की, ये सही की, ये क्या बात हुई? जब हम बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं, इसी अंदाजे बयान की बात कहा जाता है कि सियासतदान सबसे आसान टारगेट है जिसको निशाना बनाया जाता है। क्यों आसान टारगेट है भाई? आपका जो वोटर है, जो कौम है, उसने किसके पास जाना है, उसने किससे बात करनी है? सियासतदान से करनी है। सियासतदान डिलीवर नहीं करेगा तो फिर ऐसी बातें होंगी। अब पाकिस्तान के अंदर देखें, मंशूर आए हैं, तमाम तकरीरें सामने आई हैं, तमाम लीडरशिप बोली है, क्या बात करते हैं? पेट फाड़ दूंगा, घसीटूंगा, लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा, यही बयानियां है ना, करप्शन, चोर, डाकू, यही बयानियां। मेरा नाम बदल कभी किसी ने ये वैसे 5 साल नहीं, कभी अभी भी है, कल भी कहा है, परसों भी कि मेरा नाम बदल देना, आज ना चंगा नहीं लगता। राणा साहब आज भी इन किसी पार्टी ने, किसी लीडर ने कोई पॉलिसी पे बात की है? किसी पे नहीं की। आज भी कहते हैं मोटरवे, फलां पुल, फलां अंडरपास। भाई आप पॉलिसी पे बात अगर करते, जो मुहज्जब मालिक है जिनकी हम बात कर रहे हैं, बेशक उनके और हमारे मसाइल में बड़ा फर्क है, लेकिन कभी देखा उन्होंने कहा कि हम ये सड़क बना देंगे, हम ये पुल बना देंगे? उन्होंने कभी नहीं। वो पॉलिसी पे फोकस करते हैं, उस पॉलिसी के तहत पूरे मुल्क में पुल बन जाते हैं, पूरे मुल्क में सड़कें बन जाती हैं। बातें नहीं अपने मंसूबों को कभी हमने देखा। वो टैक्सेशन पे बात करते हैं, वो हेल्थ पे बात करते हैं, वो एजुकेशन पे बात करते हैं, और वो पॉलिसीज ऐसी बनाते हैं कि तमाम लोगों का उसका बराबर फायदा पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान की जो जमहूरियत की पॉलिसी है, हमें तो समझ नहीं आई
یہ کیسی بناتا کون ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ پارلیمنٹ سے جب باہر نکلتی ہے جمہوریت، جہاں پہ اشرافیہ ختم ہوتی ہے، جمہوریت کے سمراٹ ختم ہو جاتے ہیں. میرے تک اور آپ تک تو نہیں آتے وہ سمراٹ جمہوریت کے جو آنے چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں میرے اور آپ تک نہیں آتے، وہ کہہ رہے ہیں سارا کچھ ہی میرے کو ہے. آپ کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ آپ انرجی کرائسس کا شکار ہے، جس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری بند پڑی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس بند پڑی ہیں، اور ریمیٹنس آپ کا آ نہیں رہا. آپ کا جو اوورسیز ہے وہ آپ نے بدزن کر دیا، اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. اس کی سب سے بڑی وجہ پالیسیز ہیں. دیکھیں جب یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب پالیسی اچھی بنائیں گے، پالیسی بنائیں گے، آپ کی انڈسٹری چلے گی، تو خاص طور پہ یہ معاملہ ہے، آپ کے جاب مارکیٹ کھلے گی، لوگوں کے مسائل دور ہوں گے. اگر آپ کی جابز اچھی ہوں، آپ کی بزنس اچھے ہوں، آپ کو مہنگائی بھی برداشت ہو جاتی ہے. جب یہاں پہ روزگار نہیں ہے، جب تنہائیں اور آپ کے کاروبار کے جو اس کے منافع ہے وہ اتنا تھوڑا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گزارا نہیں ہوتا. ابھی ہم بات کرتے تھے نا، خودکشیاں کرنے پہ ابھی رانا صاحب ہم بات کر رہے تھے نا کہ لوگ لڑتے کیوں ہیں. لوگ اس وجہ سے لڑتے ہیں کہ جب گھر کے اندر اس کا یار ڈنر کراؤ، رانا صاحب کو ڈنر کرا دیں بھائی، رانا صاحب کو ڈنر کرائیں. معاشرہ لاقانونیت کا شکار ہو جاتا ہے، ظلم و ناانصافی کا شکار ہو جاتا ہے. میں ایک جملہ سے میاں صاحب نے کہا کہ میری کارکردگی پوچھنی ہے تو موٹر وے سے پوچھے. میں وہاں چلا گیا، میں نے کہا موٹر وے نہیں کڑیے دس میاں صاحب کی کارکردگی کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کوریا سے پوچھ لیں جن کو ابھی تک ہم پیسے دے رہے ہیں. پھر میں انڈر پاس پہ چلا گیا تو ان کو جاؤ جا کے مصری شاہ کے چھپڑوں سے پوچھو جہاں کے اوپر ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے. پھر میں چلا گیا اوور ہیڈ برج پہ، انہوں نے جائیں داتا صاحب جائیں جہاں لوگوں کو ابھی بھی گزرنے کا موقع نہیں ملتا. وہ میں نے کارکردگی نہیں پتہ چلتی. اس بات کو جس کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ 5-7 سال آپ کہیں پہ غائب رہے ہیں. یہ کوریا والا معاملہ بہت پہلے ختم ہو چکا ہے. ختم ہو گیا. فائزہ کافی دیر سے فائزہ کو بھی بولنے کا موقع دیں. بالکل فائزہ آپ انجوائے کر رہی ہیں ڈسکشن کو، یا آپ مجھے آپ یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ ینگ بھی ہیں، ابھی آپ اس جرنلزم میں بھی، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں یہ تمام لیڈران کو جو ان کی پرانی تقاریر ہیں اور ابھی جو الیکشن کے وعدے وعید ہیں، ان کو آپ نے کیسے دیکھا اس الیکشن سے؟ اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے میں پینل کے ہر بندے سے اتفاق کروں گی، کیونکہ ہم نے پالیسیز کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا. ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم نے اپنے ٹرم کے اندر وہ کام کرنے ہیں جو صرف ہمارے نام سے منسوب رہے. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں الیکشن کمپین کے حوالے سے کہ کس شخص کی انتخابی مہم کس طرح کی رہی ہے، تو میرے خیال سے پی ڈی ایم کے وجود کے آنے کے بعد اور 16 ماہ کی جو ایک ناقص کارکردگی رہی ہے، اس کے باوجود بلاول بھٹو زرداری کا سب سے پہلے یہ سٹیپ لے کر اپنی انتخابی مہم کو شروع کرنا. خیبر پختونخوا سے وہ سٹارٹ ہوئے، پھر وہ سندھ تک کے، پھر وہ پنجاب میں بھی آئے، بلوچستان تک. ایگزیکٹلی بڑی ان کی ہمت اور جگرے کی بات تھی کہ وہ لوگوں کے کرٹیسزم کو فیس بھی کر رہے تھے، جبکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ تمام تر کہانی کے پیچھے ان کے ابا حضور بھی شامل تھے اور وہ تمام تر جو عوامل ہیں وہ بھی شامل ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے سب سے پہلے اس جرأت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے سب سے بالخصوص خیبر پختونخوا، جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ گڑھ ہے، اس گڑھ میں جا کے پھر دوبارہ سے اپنی پارٹی کو دوبارہ سے انگیج کرنا، ایکٹیو کرنا، اور پھر بالخصوص عالمگیر فیملی جو ارباب عالمگیر فیملی جو ناراض ہو چکی تھی پشاور سے، ان کو پھر دوبارہ سے اپنی پارٹی کی طرف لے کر آنا، تو وہ اپنی جگہ پر بڑے اچھے نظر آئے. اچھا ہوم ورک آپ کہہ رہی ہیں ان کا ہوم ورک تھا، صوبوں میں گئے اور جیسے وہ لاہور میں آئے. اب لاہور کی اگر بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی بڑی بات ہے، چلیں آپ کو ووٹ ملے نہ ملے، لیکن آپ نون لیگ کے گڑھ میں آ کے وہاں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیے وفاقی جماعت ہے اور بے شک آپ کا لاکھ ان سے اختلاف ہو، لیکن پیپلز پارٹی میں جمہوری قدریں ہیں. کس قسم کا یہ قومی ادارہ ہے کہ 1-1-2-7 کے علاوہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. لاہور صرف پاکستان چلے ایک سٹیپ تو لیا سر، یہ کوئی سٹیپ لینا بھائی. بلاول نے لاہور میں آپ میں سے چلے، میں تو رہتا ہوں نہیں یہاں پہ، مجھے سب کینڈیڈیٹ تو فیلڈ کیے انہوں نے، لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہے نہیں. لیکن نون لیگ لڑکانا نہیں جا سکتے. آپ دیکھیں یہ پاکستان کو اتنا چھوٹا نہ بناؤ کہ ایک بندہ آ کے ایک ہلکے سے الیکشن لڑے تو قومی لیڈر بن جاتا ہے. ملک صاحب پنجاب کی تمام سیٹوں پہ پیپلز پارٹی کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، لاہور کی تمام سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ ایک بتائیں نا کہ مسلم لیگ نون سندھ میں کیوں جلسہ نہیں کر سکی؟ قومی سطح کی جماعت یہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ تمام صوبوں کی پارٹیاں ہیں، پورے ملک کی پارٹیاں ہیں. اب پریکٹیکلی اس وقت نہ مسلم لیگ نون وہاں پہ سندھ میں ایگزسٹ کر رہی ہے، نہ مسلم لیگ نون بلوچستان کے اندر اس طرح ایگزسٹ کر رہی ہے. دیکھیں سارے وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ میں گئے ہیں. لوگوں کو ابھی الیکشن سے پہلے
وہ باپ کے کچھ لوگوں کو شامل کیا یا باقی کو. جو بلوچستان کے اندر ایک زہری فیملی یا ایک دو اور فیملیز وہ بھی نظر نہیں آ رہی. اسی طرح آپ کے پی کے اندر جائیں تو کے پی میں صرف 1000 تک محدود ہو گئے ہیں. ایگزیکٹلی اگر جو پارٹی دوسرے صوبوں میں جا کے اس طرح نہیں وہ الیکشن لڑ سکتی تو جو لڑ سکتی تھی اس کو آپ نے ختم کر دیا, اس کو آپ نے بالکل ہی مٹا دیا. اب چلے میں پھر بھی یہ ملک صاحب چلے کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کمزور ہوئی ہے بہت ہوئی ہے, یہ مفاہمت کی سیاست نے بہت نقصان پہنچایا, لیکن پھر بھی بڑی بات ہے کہ بلاول لاہور میں آ کے الیکشن تو لڑا ہے, نون تو کراچی میں جا کے الیکشن نہیں لڑ رہے, ایک جلسہ نہیں کر سکے, ایک جلسہ نہیں کیا NA242 پہ مصطفیٰ کمال والی سیٹ پہ, اور وہاں پہ سو مچ سو جو سب سے بڑا المیہ ایف آئی اے کے ایک ڈی جی تھے سابق جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں بشیر میمن, انہیں کوئی خدمات کا ان کو کوئی دیا گیا صلہ اور انہیں اپنی پارٹی کا صوبائی صدر وہاں پہ بنا دیا گیا, اور باقی پوری پارٹی مایوس بیٹھی ہے. نہال ہاشمی ٹائپ جو لوگ تھے پارٹی کے بڑے ناراض رہے اس پہ. جی جی سر. محترمہ بینظیر بھٹو کو کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر, آپ شہید ہوئی وہ زنجیر ٹوٹ گئی. ریاستوں کو وفاقی سطح کے لیڈر جو ہے نا سنبھال کے رکھتے ہیں, بالکل ایسا, اور جو چاروں صوبوں میں ایکولی پاپولر ہوں. اب ایک لیڈر تھا ایکولی پاپولر, آپ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ فیڈریشن کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسے لیڈرشپ ہو جو چاروں صوبوں میں پاپولر ہو تاکہ وہ سب کو جوڑ کے رکھ سکیں؟ ضروری ہے اور وہ انٹیکٹ رکھتے ہیں. آپ دیکھیں چاروں صوبوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم نے تو بچپن سے نعرہ سنا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر, اور وہ ہمیں دکھائی بھی دیتا تھا جتنا وہ کمیٹڈ تھیں اپنے ورکر کے ساتھ اور جتنا ان کا ایک ووٹ بینک تھا. اور وہ تو بی بی کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی بھی ان کا اپنا ورکر انہیں آ کے ملتا تھا تو اس کے نام سے اکثر پکارتی تھی کہ تمہارا یہ نام ہے, تو ورکر اس چیز میں بڑا فیل کرتا تھا کہ جی بڑا میرے لیڈر نے مجھے پہچانا کیا. تو یہ ایک ضرورت ہوتی ہے, فیڈریشن کی ایک طاقت ہوتی ہے. ایسے طاقتور لیڈرز اگر آپ کے اندر آپ کے ملک کے اندر موجود ہوں, آپ کی فیڈریشن کو انٹیکٹ رکھتے ہیں, لوگوں کو ساتھ ملا کے چلتے ہیں. لیکن شاید یہاں یہ خدشہ بڑھ جاتا ہے کہ اگر کوئی مضبوط لیڈر ہوگا تو ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. میں تھوڑی سی میں اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. وجود کسی کا خطرے میں نہیں, ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے. سب ادارے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, جوڈیشری ہے, ہمارے ایگزیکٹو ہے, مقننہ ہے, سب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. سب اپنے حدود میں رہیں, بالکل حدود میں رہیں, سب میں غور کریں, حدود میں رہیں تو معاملات ایسے اچھے چلتے رہیں گے. ساری لڑائی تو یہی ہے, ساری لڑائی. اور اچھا اگر جو کوئی بھی لیڈر ہے, دیکھیں آپ قدر کریں اپنے لیڈرز کی. زرداری صاحب اچھے لیڈر ہیں, میاں نواز شریف صاحب بہت اچھے لیڈر ہیں جی, عمران خان صاحب جن کا نام آپ مشکل سے لیتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھے لیڈر ہیں. آپ ان لیڈرز کو بیٹھنے دیں, ان لیڈرز کو سیاست چلانے دیں. بے شک یہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہیں, ایک دوسرے پہ مقدمات بنائیں, ان کو ایک اوپن فیلڈ دے دیں اور بہترین احتساب الیکشن ہے. احتساب عوام کریں گے, ان کا احتساب عوام نے کرنا ہے, ہم نے آپ نے کسی ادارے نے نہیں کرنا. جب عوام ان کا بیٹھ کے احتساب کریں گے تو دیکھیں عوام بہتر جا جائے نا, وہ ان کی پرفارمنس سے ان کا احتساب کرتے ہیں. اور یہ حق ہے, یہ آئین میں ہم نے لکھا, ہم نے تو آئین کوئی پڑھا ہے اور اسی کو ہم ہمیشہ فالو کرتے ہیں. ایک منٹ رانا صاحب, ایک لائٹر نوٹ پہ ابھی آسما صاحب نے اداروں کا نا, ادارے بڑا اچھا کام کرتے ہیں. ایک ادارے کی اچھی کارکردگی سامنے آئی تھی تو میں نے کہا وہ شیئر کروں. الیکشن کمیشن پاکستان نے کراچی کے اندر ایک بندے کو پریزائڈنگ آفیسر بنایا. وہ ایک سرکاری محکمے کا ڈرائیور ہے. اس سے وہ سامنے آگے اس نے بیان دیا, اس نے کہا جی میں دسیا سی کہ میں ان پڑھ ہاں, ایسے باوجود میں بنایا تھا, دسو میں کی کرا. یہ اس ادارے جس کا وہ ڈرائیور ہے نا, اس کا جو سربراہ ہے, کیونکہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں کے ہر ادارے کا سربراہ نام دیتا ہے. اس کو پوچھنا چاہیے, سوری پوچھا تھا کہ وہ ادارے کا چلا لو, کہ انہوں نے کہا میں گاڑی چلا رہا, اس سے پوچھنا چاہیے کہیں وہ بھی تو ڈرائیور نہیں تھا. آپ کے سوال میں پھر دہراتا ہوں کہ کیا پاکستانی عوام اس پوزیشن میں ہے کہ سیاستدانوں کا حساب کر سکے؟ اس پہ میں بعد میں آتا ہوں, مگر میرے ایک لیڈر سے زیادتی ہو رہی, میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جس سے میں امپریس ہوں. اتفاق سے یہ ہوا کہ وہ کبھی تقریر نہیں کی, میں سنا نہیں ہوا, عثمان برداز صاحب وہ جو وسیم اکرم پلس میرے تو آئیڈیل وہ تھے. اتفاق ہوا ہے کہ ویسے یہ میں خان نے کل نام لیا تھا, خان صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں, کیا سلیکشن تھی ان کی لیڈرشپ کی. بہرحال جو میں آپ کے سوال کی طرح ہوں, دیکھیں ہمارے یہاں یہ لنڈے کا کوٹ, ہماری جو جمہوریت ہے, لنڈے کا کوٹ سے مراد ہے کہ ہم نے لفظ ڈیموکریسی لے لیا. ہم نے کہا جی ووٹ ڈالو گے تو چاروں صوبوں کی زنجیر بھی ہو جائے گی, معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی. یا جس ریاستی نظام میں آپ کی جب تک پولیٹیکل پریڈکٹیبلٹی نہیں نہ ہوگی, آپ پولیٹیکل کلچر پیدا نہیں کر سکتے. یہاں پہ جتنے بھی پولیٹیشین ہیں وہ پاور بروکر ہیں, یہ پبلک ریلیشن آفیسرز ہیں. ان کے دو کام ہیں, یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پہ وہ رکھتے ہیں اور ملکی دہشت گردی کا بھی بڑا ایک اہم کردار رہا ہے سارے سسٹم کے اندر. وہ بھی فیلئر ہے, اگری, میں ویسے کہہ رہا ہوں اس سے وہ بھی ایک فیکٹر ہے. جب ہم نے 80s میں کہا تھا نہ جاؤ افغانستان میں,
नया जहाद करो तो तब आप हमें Policy again, आप policy हमें problem है पहले कि ये कहते policy- थे ना, policy आप मसला हमें है। लेफ्टिस्ट कहते थे कि इंडियन एजेंट है, ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि रियासत का क्या काम है, जहाँ पे हम कंफ्यूज हो गया। रियासत का काम है एक न्यूट्रल प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट बनाए, लोगों को एजुकेट करे, क्योंकि रियासत माँ होती है, उसका कोई मतलब हम कोई सोना बच्चा नहीं होता, सारे सोने होते हैं। हो सकता बिल्कुल, है आप मेरी माँ से सबके- पूछिए, वो कहेगी मेरे सारे बेटे शाहरुख खान हैं, वो कहेगी मेरी और सारी थोड़ा सा बेचारा कोई कमजोर हो तो उसकी तरफ उसकी हमारी ज्यादा तवज्जो ज्यादा होती है कि भाई इसका मैंने ध्यान एक रखना मैं है। जवाब इसका दूं, जिस दिन हमारी माँ को ये समझ आ गई कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज मेरी है, मैं अपनी छोटी मोटी अकल के साथ आपको गारंटी देता हूँ पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी का दान नहीं है, पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल लीडर घटिया नहीं है, सारे वतन परस्त हैं। मसला क्या है, हम एक प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं ला सके। मैं जो बार बार कह रहा हूँ, 70 में इलेक्शन करें, 77 में करें, 82 में करें, 88 में करें, 92 में करें, आप चलते जाएं। मैं अभी बैठे सोच रहा 85 वाले था करते। कि इतना पाकिस्तान का इंटरप्शन है यहाँ पॉलिटिकल कल्चर में, मगर सलूट टू पाकिस्तानी लीडर्स। भुट्टो ने लफ्ज इंट्रोड्यूस कराया मजदूर, किसान, मेहनत कश, ये नई डिक्शनरी थी। बेनज़ीर ने लफ्ज यूज कराया खवातीन, शोर के वाले से। नवाज शरीफ लाया ताजर बिजनेसमैन को। फिर खान आता है, खान लेके आया वो क्लास जो पढ़ी लिखी थी, जो कहती थी हम तो अमेरिका जाएंगे, हम तो ये लेवल करेंगे, नौजवान, सोशल मीडिया। तो अगर आप ईमानदारी से देखें, सबकी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। बिल्कुल, आप बड़ी अच्छी सिर्फ आपने प्रोसेस, बात की। लास्ट बट द लीस्ट, जब तक ये रियासत ह्यूमन डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगाएगी, आपका पॉलिटिकल कल्चर नहीं बदलेगा। ठीक है फायदा, जो मलिक साहब बात कर रहे हैं कि इन्होंने कहा ये वो प्लस आ गया, वसीम अकरम प्लस। मेरा हीरो है वो वैसे। उनका ही केपी के में वसीम अकरम प्लस था, उस्मान गुलजार प्लस था। ठीक है, माजी में भी नकई और गुलाम हैदर वाइंस जैसे लोग आते रहे जो इनसे भी बहुत पीछे थे और उनको वजीर आला बनाया गया था। तो जो लीडरशिप है जिसकी मलिक साहब बात कर रहे हैं कि ये उनको काम करने दें, उनको मौका दें, तो जब इन्हें मौका मिलता है तो ये क्यों नहीं परफॉर्म करते? ये तब तो एक दूसरे को कत्ल करने के ऊपर खड़े होते हैं। एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये होता है राना साहब, ये सवाल ना एक और जगह पे मैंने सुना, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग से मुझे एक सीन मिला कि वो ये था कि हम जब भी कभी अपने पॉलिटिकल सिनेरियो को उठा के देखते हैं तो जो हमें वोट दिया जाता है वो बेसिकली हमें सर्व करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए दिया जाता है, लेकिन हमारा फोकस उस तक तब्दील हो जाता है, क्योंकि हमारा फोकस ये होता है कि अगर मैं आके यहाँ पे बैठ गया हूँ या जिस रास्ते से मैं आया हूँ, मैंने उस रास्ते पे अपनी सारी सर्विंग हमने वहाँ पे कन्वर्ट कर देनी है, हमने अपनी उस जगह से वापस नहीं आना, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि ये जो आगे करोड़ों के हिसाब से जो एक मजमा बैठा हुआ है, जिसे हम कभी बिरयानी की प्लेट पे या किस तरह से इंगेज करके अपने पास ले आते हैं, हमने उसे सर्व नहीं करना। और जिस रास्ते से आप आ रहे हैं, आपने उस रास्ते पर अपने आप को सर्व करना है। बिरयानी देती रही है, यहाँ उन्होंने फॉलो कर लिया था, कॉपी कर लिया था। Exactly. तो यही एक बेसिक प्रॉब्लम रहा है हमारी सोसाइटी का भी। लेकिन आज मुझे अपने जो पैनल की सबसे अच्छी बात लगी कि जब आप और आसमा साहिबा ने जब एक स्टार्ट लिया, वो इतना जबरदस्त स्टार्ट था जिसमें आप सबको ये मैसेज दे रहे थे कि आपने कल घरों से निकलना है। और एग्जैक्टली सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम बन चुका है इस वक्त के जहां पर दो तरफ की चीजें चल रही हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जी आपके आईडी कार्ड छीने जा सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मेरे ख्याल से इस वक्त इस तरह के रूमर्स को नहीं देखना चाहिए। हमारा बेसिक राइट्स यही है, और जो हमारे वोट के जरिए आते हैं उन्हें ये इस दफा सोचना चाहिए कि ये जो हमें मुंतखब करके लेकर आ रहे हैं, ये हमें हमारे लिए मुंतखब करके लेकर आ रहे हैं या फिर अपने मफाद के लिए लेकर हमने अपनी सर्विंग कहीं और नहीं करनी। और वो कहते हैं ना, गोज अराउंड एंड कम्स अराउंड वाली बात है, फिर आप जो करोगे वो आपके पास वापस आएगा। तो ये अभी तो वीडियो मैं अभी देख रहा था, उसके अंदर तो वो इंतखाबी धांधली के वाली भी सोशल मीडिया पे चल रही है कि जी ये फौजी वर्दी है, ये पुलिस की वर्दियों को ऑर्डर देनी है, ये करना है, वो करना है, बैलेट जला रहे हैं। ये जो 126 तरीके वो वही कर लगा, उन्होंने खरीदे, सीखे, उन्होंने भी बताया ना 126 तरीके ये कैसे आप 126 पहले हमने फिगर आउट कर लिए थे कि ये तरीका धांधली का, 20-25 नए ऐड हो गए हैं। यानी आप वो सोशल मीडिया की जो इंडक्शन की बात करें, वो कुछ नई चीज है कि हमने वीडियो के जरिए जो आपको जो होता है ना कि मैंने फर्ज करे मैनिपुलेट करना, जो अमूमन चॉइस साहब से भी हम जो प्रोग्राम में बात करते हैं, कुछ चीजें हैं जिनके आप फैक्ट चेक कर लेते हैं, फैक्ट चेक करने से आपको पता चल जाए ठीक है। बात चीजें इस तरह से वायरल की जाती है कि आप उसमें फैक्ट चेक किए बगैर ही उसको इतना स्प्रेड कर देते हैं कि वो लगता है ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया। यानी एक्चुअली आप प्रोपेगेंडा का विक्टिम बन जाते हैं, प्रोपेगेट किया जाता है चीजों, किसी भी तरह से किया जाए। कल रात को ना एक नोटिफिकेशन शेयर हुआ सियालकोट से एक उम्मीदवार का, वो सोशल मीडिया पे शेयर हुआ। उस बंदे को मुतनाज़ कर दिया गया, उसको एक नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करके एक नोटिफिकेशन बना के ड्यू टू दिस रीजन उसका जो है ना डिस्क्वालीफाई कर दिया गया इलेक्शन से। इलेक्शन कमीशन का बना हुआ है, वो मेरे पास भी आया, मैंने देखा। और भी लोगों की छुट्टियों का जब वो नोटिफिकेशन देखा ना तो उसके ऊपर थी डेट
6 फरवरी, नीचे जहाँ पे साइन थे वहां थी 5 फरवरी, वहीं से उसकी जालसाजी पकड़ी है। इसमें एक और दिलचस्प, हमारा इलेक्शन कमीशन क्योंकि माशाल्लाह उसकी बड़ी नजर है, बड़ी सब और गहरी नजर है, अगर गहरी नजर। आपने कहीं ट्रंक में भी बल्ला छुपाया हो तो उसे नजर आ जाता है। उसने एक जगह इंतखाबात मुलतवी कर दिए कि बंदा मर गया है, पता चला तो वो तो बहुत पहले का मरा हुआ है। तो लेकिन अच्छा, हम जरा निशानात पे आ जाते हैं। इतना मजा का खेज निशानात दे दिए गए, किसी को चिमटा दे दिया गया, किसी को जूता दे दिया गया, गदा गाड़ी दे दी गई परवेज इलाही अच्छा, साहब को। आपको शायद याद होगा इस्लामाबाद में आज पिछली दफा ये मुझे तो मैं 2018 का याद है कि 2018 से पहले सियासी जमातों ने मिल बैठ के इलेक्शन कमीशन ने इनको सिंबल दिए थे, इन्होंने उसके ऊपर जो फाइनल किए थे सिंबल्स सिर्फ वही अलाउ थे इलेक्शन में। मुझे नहीं पता अब के अंदर तब्दीली आई है नहीं आई, मुझे समझ नहीं आ रही क्या सिंबल कहां से आ रहा है। जिंदगी में कभी के आपने कभी साइन देखा? नहीं, मैं नेवर। ए का है, के है। अगर आप मुनासिब समझे तो ये निशानात थोड़े से पढ़े जरा, ध्यान से पढ़िएगा, कुछ ऐसे भी हैं जो आपको शायद पढ़ना मुनासिब ना बोतल है, केतली है, चिमटा है, बकरी है, प्याला है, क्रिकेट विकेट है, घड़ियाल है, शावर है, रैकेट है, और क्या हवाई जहाज है, घड़ियाल है, अच्छा, और शीप है। एक मिनट प्लीज। एक निशान कल NA 173 निशान था सब्ज मिर्च। हाय हाय हाय। अच्छा, सब्ज मिर्च निशान था। अब जो बैलेट पेपर है वो सिंगल कलर में है, उसमें ब्लैक ही छपना है, उसमें मिर्च का कलर सब्ज नहीं होना, प्याला और उसको निशान सब्ज मिर्च दिया है, अनार है, ये देखे क्या क्या है, चाय दानी है, डॉल्फिन है, दरांती है। कैंडिडेट जिसका शावर था वो तो बेचारा लोगों को नहा के दिखाता रहा है, ये वाला शावर है। लेकिन ऐसे निशानात देने का फायदा क्या था? लेकिन इस सारी गेम में इलेक्शन कमीशन ने चुन चुन के लोगों को दिए, जान के लगा कि इलेक्शन कमीशन पार्टी है बदला, लेकिन जब के मुताबिक दिया। क्या कहते हैं MQM लंदन के जो उम्मीदवार उन्हें एक ही मिला, ये क्या साइंस है? देखिए इसमें ए से अल्ताफ बनता है, सीधी सी साइंस है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है ना, इलेक्शन कमीशन दो है मेरे ख्याल में, ट्रेजेडी क्या है, दो चीजें, लेकिन दो है। ट्रेजेडी क्या है, वो होंगे बड़े, लेकिन ये कैसे हुआ ये बड़ा ट्रेजेडी ये है कि हमारे इदारों की अभी तक क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ पॉलिटिशियन का जो क्राइसिस है वो रियासी इदारों से डायरेक्टली रिलेटेड है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन नजर आएगा ना, इलेक्शन कमीशन है सियासतदान की ऐसी ऐसे निशानात की बाकी क्या रियासती इदारों का जरूर, ये किसकी जिम्मेदारी है? ब्रेक ले, रियासत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ऐसे सिंबल्स वो क्यों दे रहे हैं। इस पे जरा कंटिन्यू करेंगे बात को एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले इलेक्शंस जो सिंबल दिए गए हैं, आपके उम्मीदवार हैं और उसका निशान क्या है। अब हमारे हलके में मैंने जिनको वोट देना है उनका ऊपर वाली सीट का मुझे पता है, नेशनल असेंबली का क्या साइन है, MPA का मुझे नहीं पता। कल अब वापस जाऊंगी इस्लामाबाद तो वहाँ जाके पूछा जाएगा कि कौन है, क्योंकि 10-10 लोग हैं एक ही सीट पर खड़े हैं, तो ये भी एक ज़रा कन्फ्यूजन का है। आजम चौधरी साहब ये शिकार हैं। तो ये जो सिंबल दे दिए गए, क्या वाकई ऐसे लोगों को मतलब एम्बेरस कराने के लिए इस तरह के सिंबल्स दिए? परवेज इलाही साहब को ये क्या है? अच्छा, ये सिंबल्स के ऊपर एक दिन पहले भी हम ये बहस कर रहे हैं। देखें, ये लोगों को इस तरह एम्बैरस नहीं करना चाहिए। आपने अगर ऐसे निशानात देने हैं, थोड़े से ऐसे कुछ चूज कर लें जिनमें थोड़ा सा बाइज्जत आप किसी को एम्बैरस करने के लिए ऐसा दे रहे हैं। आप देखें, एक हल्के के अंदर मैक्सिमम कितने कैंडिडेट्स खड़े हो जाएंगे? 10 खड़े हो जाएंगे, 15 खड़े हो जाएंगे, 20 खड़े हो जाएंगे। आप 50 या 30 या इतने के नाम जो सिंबल है आप उनको सिलेक्ट कर ले जो बाइज्जत हो, जो किसी को तकलीफ ना हो। अब इसके अंदर इस इलेक्शन के अंदर एक तो जो PTI थी उसके हर बंदे को अलग-अलग निशान, फिर कुछ निशानात ऐसे हैं जो काबिल एतराज़ भी हैं जिसके ऊपर लोग दुरुस्त एतराज़ उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को उनको तब्दील कर देना चाहिए था। लोग गए हैं इलेक्शन कमीशन में, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। वाकई में अगर इस तरह का और इससे मैं समझता हूँ ये जो इंतखाबी निशान को अगर आप निकले ना हल्कों के अंदर जहाँ पे वो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वहाँ पे अजीबो गरीब किस्म के नारे, अलकाबात इन निशानात के हवाले से बनाए जाते हैं जो कि मुनासिब नहीं होते। अगर अच्छा, फिर इससे क्या है, मुनाफरत फैलेगी। जिस तरह इद्दत वाले केस पे आपने बुशरा पे इल्जाम लगाए, लोगों ने मरियम नवाज की ट्रोलिंग शुरू कर दी। चले वो लगता हमारी सोसाइटी में खवातीन को जो ना टारगेट करना बड़ा इजी है। वो क्या लॉर्ड द पावा अख्तर लावा, वो बेसिकली उसकी बड़ी वो कहता है कि मुझे जब मैं काउंसलर का इलेक्शन लड़ने लगा तो मुझे ये जो मंजी का पावा है ये मुझे मिला था। लाहौर की एक और शेयर करूं कि एक
सलीम साहब इलेक्शन में खड़े हुए थे, उनका नाम था सलीम किरला, ठीक है ना। अच्छा, उन्हें मजाक में खड़ा किया था, और एक वक्त ऐसा आया था कि वो सरफराज नवाज को ले दे गए थे, और ये नहीं मजाक से एक साहब हाजी शरीफ दीवा, वो उनका निशान दीवा था, उनको शरीफ दीवा कहना शुरू हो गया नाम आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैं अगर लाइटर नोट पे एक बात ऐड करना चाहूँ, पहले तो दो चीजें हैं। एक चीज तो ये हमने देखा कि इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान जिस तरह से हम देखते हैं कि कुछ जानवरों को ले आते हैं और उनको सैंपल के तौर पे पेश करते हैं, बकायदा उनको मारा पीटा जाता है। खुदारा इस किस्म की चीजों को रोका जाए। आप किसी का गुस्सा किसी पे निकालने के लिए, या आप उसको वो समझ कर आप उस पे वो गुस्सा निकाल रहे होते हैं, एक तो इस तरह की चीजों को रोका जाए। सेकेंडली, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक बड़े फेमस चैनल के ऊपर होते हैं, तो मैंने उनका एक कॉलम पढ़ा तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मैं शेव करवाने के लिए गया तो मैंने देखा नाई की दुकान के बाहर ना बैंगन लटका हुआ था, तो मैं पूछना भूल गया। काफी सारे एग्जैक्टली बाहर निकला तो दूसरी दुकान पे भी था, तो वो पूरी मार्केट में जगह जगह पे बैंगन लटके हुए थे। तो मैंने पूछा ये खैरियत है, मतलब लोग तो कोई जूता लटकाते हैं कोई नजर के सिंबल से बचने के लिए, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि नहीं जी, ये जिसको हमने वोट डालना है ना उसका निशान बैंगन है। तो अब उन्होंने कहा कि ये इनको निशान मिला, एक साहब ने ये लगाया तो बाकियों ने सब ने इसलिए लगाया कि ये एम्बैरसमेंट ना रहे उनके लिए, कि भाई ये इस वजह से एम्बैरसमेंट ना फील करें, वो तो हमने उनका साथ दिया, सपोर्ट कर रहे कमीशन ने भी चुन के फैसला किया कि किसको क्या निशान देना है। मुझे मैं चाह रहा था आप इस पे बात करें कि ये जो मजाक बना दिया गया इलेक्शन को, और इस तरह के फिर मेरी बात वही आ जाती है कि इलेक्शन कमीशन चाहता क्या है, और वो पंजाबी कहते तू चाहना की है, वो चाह रहे हैं मेरे ऊपर भी तो इन्हें इलेक्शन कमीशन लग जाए। नहीं, इलेक्शन कमीशन शायद ये कुछ नहीं रहा, उनकी जो कुछ खास एक किस्म की रंजिश थी या एक कुछ दिल आजारी हुई थी उनकी पीटीआई गवर्नमेंट में, तो शायद वो उसका बदला लेने की भी एक भरपूर कोशिश है इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से जलसा का बदला, हालांकि उनका काम ये नहीं है अपना इमरान खान साहब ने की थी, लेकिन बाद में बताया था किसके कहने पे की थी। अपनी आंखों से याद है जब वो गए तो उनकी वो अल्फाज मेरे कानों में कि अब मैंने वो जो बंदा आज लगा दी है। लेकिन आप बाद के भी इंटरव्यू सुने होंगे, उन्होंने कहा कि मुझे वो तो खान साहब लेने उनका जनरल बाजवा की तरफ से पर्ची आई थी कि ये बंदा है तो इसको खान साहब ये ऐसे ही था, हमारे फैसले ऐसे ही होते हैं। वो तो आप देखिए बजट पास कराने के लिए वो कहते थे एजेंसियों के बंदे हम लेने पड़ते हैं, हुकूमत ही चल रही थी। चले खान ने पूरी बात नहीं बताता, आधी बात बाद में याद आती है, जिस तरह नहीं वो काबीना वो नहीं तो बजट पास कराने के लिए भी बंदे वो एजेंसियां ही मैनेज कर रहे हैं ना। माजी में ऐसे ही होता मेरा ख्याल है कि ये ना सियासतदानों का अलमिया है। मियां साहब ने भी 3 अपॉइंटमेंट की, उन्होंने तीनों ने उन्हें निकाल दिया, और फिर साकिब निसार भी उनकी और अभी भी निगरान वज़ीर आज़म की सर वो जो आपकी इजाजत से वो तो राजा रियाज ने कहा ये पर्ची मैंने प्रोग्राम में उनसे बीपर लिया, तो मैं कहा राजा साहब आपको ये नाम कहाँ से आया? उन्होंने कहा जी ये पर्ची मेरी जेब में थी और मैं जब वहाँ गया तो मैंने वो पर्ची, मैं और शहबाज शरीफ थे, मैंने वो पर्ची उनके सामने खोली तो उसमें मैंने उनको नाम दिया, ये उन्होंने फौरन कहा हाँ जी ये सही है। तो एतजाज अहसन साहब से मैंने जब सवाल ये किया, शांता भी कोई तो एतजाज अहसन साहब से जब ये सवाल किया तो एतजाज अहसन साहब ने कहा कि हाँ वो पर्ची वो दोनों बैठे थे ऊपर छत से गिरी और दोनों के सामने आई, और उन्होंने कहा कि जी ये काकड़ साहब का नाम होगा। तो हमारे यहाँ पर्चियां सर चलती हैं, पर्ची वाला मामला है, आप बेहतर समझदार हैं, ऐसे ही मामला आगे चलते हैं पर्ची के साथ। जो इस बात से मैं पूछना चाह रहा था कि अगर डिसीजंस जो हैं ये इलेक्शन में अवाम पे छोड़ दिए जाए कि वो तय कर लें, तो क्या बेहतर नहीं होगा? ये जो हमारे अनाव की जंग है कि इसने क्योंकि अपने दौरे इक़्तिदार में मेरे साथ ऐसा किया तो इसका बदला मैं पूरी कौम से लूंगा, क्योंकि साइड लाइन आप पीटीआई को नहीं कर रहे, आप उन 3-4 करोड़ लोगों को कर रहे हैं जो जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा हैं और इस प्रोसेस में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं। 9 मई जिन लोगों ने किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, और लेकिन जो लोग रियासत पाकिस्तान को, आईने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों के एहतराम को यकीनी समझते हैं, उनको तो मौका मिलना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े। बिल्कुल। असल में इसमें जो एक चीज़ हमें अनफॉर्चुनेटली समझनी पड़ेगी, ये मैं एक साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट देखता हूँ, हमारे रियासती इदारे जिधर जा रहे होते हैं ना, हमारा बहुत सारा वोटर है वो पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहा, वो देखता है ताकत किधर जानी है, तो उससे सिंपल जाता है। अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं जिस कल्चर में बैठा हूँ, अगर गधे का निशान मुझे देंगे तो मैं कॉमेडी बन जाऊँगा। आप एक आम आदमी को शेर का निशान देंगे, शेर विनिंग निशान है, तो मैं समझता हूँ ये निशानात की कोई इत्तफाक़ात नहीं है, इसके पीछे एक कोई एक साइकोलॉजिकल मैसेज चला जाता है। पता नहीं ये इदारे जान के करते हैं कि ये नहीं करते, ये उनको पता होगा, मगर मैं एज ए इंसान समझता हूँ कि इसे मैसेज है, देयर इज ए मैसेज इन दिस सारी सिंबल किस लिए है? जिस तरह सिंबल
सिंबल पे देखें गधा गाड़ी का जो सारा कौमें किसी को हैं, सिंबल देंगे जूते ये का प्रॉब्लम ही नहीं, नहीं जूता जूता से- से- एक मिनट राना, एक मिनट, मेरे बेशुमार जो फौजी हैं जो जवान है वो सिर्फ इस झंडे के इमेज के लिए जान दे बिल्कुल देते ऐसे हैं, ही तो हम सलूट करते हैं ना, इमेज है इमेज। तो ये अगर किसी को गधा दे देना या किसी को जूता दे देना, सुरख हाँ। मिर्च या हरी मिर्च देना, दिस इज क्लियरली ऐसा निशान है, मैं सबसे बिल्कुल। और एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि गधे का निशान ह्यूमिलेटिंग है ये, लेकिन अमेरिका में तो गधे का निशान जीत जाता है, उल्लू का निशान भी जीत जाता गधा है, तो तो वहाँ वहाँ पे पे इकदार उनकी बदल जाती सोसाइटी में है, ऐसी उनका चीजें बदल जाती है, इकदार वहाँ बदल पे जाती है। गधा वाइज उसकी एलिमेंट है, वहाँ पे लोग जो गधे को वाइज समझते हैं, हमारे यहाँ कौवे को बेवकूफ समझा जाता है, उल्लू वो को कौवे को बेवकूफ समझा उसको जाता है। हाँ, तो ये गधा नहीं societies का फर्क है वहाँ मेहनत पे। का वहाँ पे निशान है, वाइस का नहीं, पर in a way मेहनती है, उसके अंदर हाँ मेहनती है, मेहनती है। working। अब वो अपने उसको सिंबलाइज करते हैं कि वो उसके साथ चल रहे होते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, एक दूसरी बात ये है, ये जो आपने कहा ना, अगर मैंने ये तय किया है कि मैंने जो है ना किसी को इंसल्ट करनी है किसी की, या मैंने किसी से कोई स्कोर सेटल करना है, या मैंने पॉइंट स्कोरिंग करनी है, तभी वो इस किस्म के काम करेगा ना। अब असूल ये था जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि ये तमाम सियासी जमातों को ये बैठकर तय कर लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन के साथ कि ये मुमकिना इंतखाबात है। हाँ, इस दफा आजाद आ गए बहुत सारे लोग तो कुछ निशान ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बट स्टिल आपके पास 372 हैं, आपने वहां पे कैंडिडेट आप ज्यादा मेरे ख्याल एक हल्के में कितने उम्मीदवार बीस हो जाएंगे, सबसे ज्यादा जाए आपको सबसे निशाना ज्यादा जाए रखें। वहां पे मेरे ख्याल 43 या 46 लड़ रहे हैं, और जो लोएस्ट हल्का है जिसमें कम से कम है वो 8 है, ये ओवरऑल पाकिस्तान। तो अगर आप 50 के हिसाब से भी लगा लें तो आप वो निशानात बना सिंबल्स जो है वो बना लें कि भाई इतने ही सिंबल्स मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते तो हैं। कितनी मेहनत जैसा सोचता है, सामान लेकिन बना इलेक्शन कमीशन लगता है बड़ी रिसर्च करता है कैंडिडेट्स के नहीं, वो ऊपर, गए- और रिसर्च करके उसके बाद वो उन्होंने निशान जाके अलॉट करता है खातून कि के बड़ी साथ रिसर्च गए के साथ जो चलते अपनी हैं। बेटी का जहेज खरीद रही थी। अच्छा। तो जहेज की जितनी चीजें थी ना वो उन्होंने गिनी, लिखी और कहा कि ये बांट दो सबके अंदर, लेकिन कोई गधा चीज गाड़ी- छोड़ दे जो बता दे गधा जो बाहर गाड़ी- नहीं गई। हाँ, सब शुक्र करें कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि अगर वो भी आप तो आपके उसके द्वारा वो आ जाती तो कोई नया मसले बन जाने थे। मेरा ख्याल है आम का निशान तो नहीं है, नहीं, ज़हनी तौर पे ऐसे निशान है, हम कई जो हमारी जुबान है जिस तरह देखो ना, मेरा ख्याल है। मैं वही बात कर अब आप जिसका निशान यहाँ देखें कितनी कल्चरल बात है। आपने ना अमेरिका की बात की, मैंने अमेरिका के 3-4 इलेक्शन देखे, मुझे वहाँ मेहनत का सिंबल है। हमारे तो पंजाबी कल्चर में इतनी छोटी मैं बात करने लगा हूँ, यहाँ कहते हैं वर्कर जो है कामी के काम करने वाला घटिया होता है, वैसे तो कामचोर लोग हैं, कमी तो कहते की हम तो बेइज्जती इंसान करनी की है। रिस्पेक्ट भी नहीं देते अब ना। देखें ना वो maturity अमेरिका में तो लोग कहते हैं ये आप डंकी मेहनत का symbol है ना, यहाँ पे respect है। आप किसी को कहेंगे तो कहेंगे तू खोते नु वोट चले आप सब वेरी क्विकली हमें जरा ये बताते चलें कि सुबह कैसे निकलेंगे वोट के लिए, कोई तैयारी शैरी आप लोगों ने की? अनुशासन मैं तो बहुत परेशान हूँ, नहीं, मैं जरूर करूंगा, लेकिन मुझे याद ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये दिखाई जरा दिखाई मैं अगर ये दूर बन गया आपके हाथ में। नहीं, दूर की बात क्या नहीं है क्या अच्छा, अभी मैं सोशल मीडिया पे जो आपको बता रहा था ना कि एक नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन का ये इम्पैक्ट आया कि इलेक्शन कमीशन को उस पे अपनी तरदीद जारी करनी पड़ी कि ये इस उम्मीदवार साहब के इसलिए साथ कि हमारे यहाँ ये मिजाज बन गया है कि सोचे समझे बगैर लोग वायरल करते हैं, लोग नोटिफिकेशन बनाते क्यों है? मैं अगर चाह रहा हूं ना कि ये इस किस्म का नोटिफिकेशन आ जाए तो वो बना दिया जाता है, और फिर जो उस वही चाहने वाले सारे बेवकूफों के साथ शेयर वोट के लिए क्या कर कह ये रहे हैं वोट आप? बनाए एक क्या ऐसी तैयारी? जगह पे, मैं मुझे ये समझ नहीं आ रही, और इंस्ट्रक्शन ये है कि आप गाड़ी पे नहीं आ सकते, अच्छा, मोटरसाइकिल पे आएंगे। ये छप्पड़ है और बड़ी खौफनाक सूरत हाल है क्या? वहाँ की जो हमारी कैनाल के साथ वहाँ काफी सारी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वो पहले कह रहे थे कि वहाँ इजमीर के अंदर बना दिया जाएगा, अच्छा। ना ईएमई के अंदर, वो उन्होंने एक ऐसी जगह हमें दूर भेज दिया, वो जहाँ पे से गांव शुरू होगा लाहौर के बाद, ओके, ओके। और ऐसी जगह है कि जहाँ मैं ये सोच रहा हूँ, वो कह रहे हैं मोटरसाइकिल पे आ जाइएगा या पैदल आना पड़ेगा, गाड़ी नहीं जा फैजा, आप सकती। ना जा रहे हैं वोट डालने के अच्छा, लिए। मेरा वोट वीजा जो तो है- नहीं चाहिए आपको? पता नहीं, मुझे तो लगता है वीजा वाला ही साहब मेरा है। वोट तो बड़े करीब में है और मैंने उसके लिए प्लानिंग ये बहुत अच्छा हुआ है। अर्ली मॉर्निंग निकल के उठेंगी जाऊंगी, और- लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगी कि मेरे घर के जो बाकी लोग हैं, बिलखुसूस मेरे हस्बैंड, उन्होंने 2-3 घंटे का सफर करके जाना है अच्छा। और फिर अपना वोट कास्ट करके आना है, जबकि हम दोनों के आईडी कार्ड का पता बिल्कुल सेम Same है। है। और कंफ्यूजन ये हो रही है कि आया जिस हल्के को बताया जा रहा है कि वोट वहां पे डाला भी जाएगा या वो जगह है भी कि नहीं है, ये एक बड़ी मिलना भी तो confusion बड़ा है। बात है। मैंने भी अच्छा आज जी, बड़ी ये बड़ा मुश्किल से अच्छा अपना हुआ है ढूंढा आज जो वोट जो के निशात साहब को देहाती पोलिंग स्टेशन मिला। अच्छा, वो वजह रीजन वो क्या वो होगी? उसकी वजह ये है, देखिए अच्छा, ये छप्पड़ों में से होके जाएंगे ना? मियां नवाज शरीफ साहब ने कल जो तकरीर की थी ना, मोटर एक उन्होंने चीज क्लियर कर दी कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन है। ओके। उन्होंने इशारा दे
دے دیا ہے کہ شہباز شریف ہوں گے, تو نشاط صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں, یہ ان کو ضرور بتائیں گے کہ پورا لاہور پیرس نہیں ہے, چند سڑکوں کو چھوڑے یہ بھی لوگ جو ہے نا حقدار ہیں. ہم تو کوشش تو ہم نے یہ بھی کی جن سے ہمارے اچھے تعلقات نہیں, ہم ان کو بھی یہ بتائیں کہ جناب عوام کے یہ مسائل ہیں, اس کو دور کرے بھائی. اسلام آباد جانا ہے اور صبح صبح میں نے تو آج ٹرانسمیشن کے لیے بس رک گئی, اور پھر انشاءاللہ صبح صبح اسلام آباد بائی روڈ مجھے بھی صبح صبح ہی اٹھنا پڑے گا یہاں پہنچنے کے لیے, وہاں جانا ہے, پھر ووٹ کاسٹ کرنا بڑی مشکل سے. پتہ ہے آپ کو مجھے ووٹ ملا 8300, میں تو اپنے فون سے ایک ہفتہ کرتی رہی, نہیں ملا, تو پھر خیر آگے کسی اور سے ریکویسٹ کی, تو وہاں سے یہ 8300 پتہ چلا کہ میں اسلام آباد کی رہائشی ہوں, تو گھر کے قریب, میرے گھر کے بالکل قریب ہی بن گیا ہے, تو وہ وہاں سے صاحب آپ نے آپ کا ووٹ ڈالنے دینا ہے, آپ ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے, پہلے پوچھیں ڈالنے دینا ووٹ آپ کو. کمیشن نے میرے لیے خامدوں کے لیے ایک بڑی نیکی کی ہے. نارملی ہوتا تھا کہ خامن میاں بیوی ساتھ ساتھ فیمیل میل ایک ہی جگہ, اب میں جتنے اپنی فیملی میں اپنے بھی دیکھ رہا ہوں انہوں نے سب کو سیپریٹ کر دیا. میں تو بیگم صاحبہ نے نال ہی جانا, میرا ووٹ اتنے ہی بڑے ہیں جتنے بڑے ہیں ہمارے, تو 6-7 الیکشن کمیشنر رل کے کچھ کیتا ہے. سارا ٹرک ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਜੋ خامدوں کو ریلیف دیا جائے. ہم بچپن میں وہ جو سنتے تھے نا گانا, آؤ بچوں سیر کراؤں تم کو پاکستان کی, تو انہوں نے کہا کہ اس بہانے ذرا لوگ سیر کر لیں, 6-6 میل 7-7 میل دور جائیں. جانا صاحب بڑے چلا گئے, بتا نہیں رہے کہ انہوں نے کہاں ووٹ ڈالنا ہے, ان کے ساتھ کیا ہوا. میں نے نا یہ ابھی دکھاتا ہوں, یہ میں نے میرا یہ کارڈ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ میں نے رکھا ہوا ہے. میں نے تو صبح اٹھنا ہے بھائی, اپنی ڈیوٹی دینی ہے, میں نے تو جانا ہے, ووٹ نہیں کاسٹ کرنا. میں بتا رہا ہوں, اب اتنا چوچا تھوڑی کہ میں ووٹ بھی نہ کاسٹ کروں, لیکن یہ ہے کہ ہم سب ہم تو وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ عید, الیکشن, اس طرح کے معاملات میں ہم بجائے یہ کہ ہم گھر میں لوگوں کے ساتھ اپنے وقت گزاریں, ہمیں تو باہر گزارنا پڑتا ہے. کل ہم نے جانا ہے پولنگ بوتھ پہ, کارڈ بنا ہوا ہے, ہم ایک اخبار کے ساتھ میں منسلک ہوں, روزنامہ پاکستان کے ساتھ نوشاد صاحب بھی, تو پہلے تو ہم نے اس کے لیے کچھ تھوڑا سا کرنا ہے, پھر اس کے بعد ہم نے یہاں آ کے بیٹھ جانا ہے. تو میں دونوں ذمہ داریاں دیکھیں, لیکن ہم لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ بھی اتنے بزی ہیں ٹرانسمیشنز میں بیٹھنا ہے, اور لیکن اس چیز کو شور ہم نے کیا ہے کہ ہم پہلے یہ جو ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہمارے اوپر جو یہ فریضہ ہے وہ ہم نے پہلی فرصت میں وہ ادا کرنا ہے, پھر ساتھ اپنی صحافتی ذمہ داریاں ان کو بھی ادا کرنا ہے, پھر گھر جا کے جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ادا کرنی ہے. تو دیکھیں ملٹیپل جو ٹاسک ہے نا جو ہمارے ساتھ, آپ رہ گئے, آپ نے نہیں بتایا آپ کہاں ووٹ جا رہے ہیں. میری رہائش ہے گلشن راوی میں, اچھا, اور میری ساری فیملی کا بچوں کا ووٹ نکلا ہے ساندا کے اندر. اچھا, تو لیکن وہ حلقہ 130 ہی ہے, ہمارا حلقہ 130 ہے, تو ظاہر ہے صبح صبح سب سے پہلے ووٹ ڈالیں گے, پھر آ کے اپنا کام شروع کریں گے, کیونکہ میری تو ذمہ داری بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, نیوز ریلیٹڈ ہے, تو مجھے پورا شہر بھی پھرنا پڑے گا, اور اس کے بعد آ کے تو پھر اچھا عاصمہ, جو اس ساری باتوں سے ہم نے جتنی یہ ابھی یہ آخری چند لمحوں میں جو ڈسکس کی, جو ہم دیکھنے والوں کو بھی آپ بھی کہہ رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں کے باوجود کل کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے, اور کل آپ جب فخر سے یہ اپنے انگوٹھے پہ کالا نشان دکھائیں گے, سب نے دکھانا ہے, تو وہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہم نے ذمہ داری 12 کروڑ 80 لاکھ لوگ ہیں جن کے انگوٹھوں پہ نشان ہونا چاہیے. سکسیس یہ ہے اس قوم کی, اس دن یہ قوم جیت جائے گی جس دن 12 کروڑ 80 لاکھ جو ہے وہ اپنے یہاں ووٹ دکھا. اور میرا یہ یقین ہے کہ کل ہم تو ووٹ ڈالیں گے, بہت سارے ایسے لوگ جو یہ دنیا چھوڑ گئے نا ہمارے جانے سے پہلے ڈال کے بھی ووٹ ڈال جائیں گے. کچھ ایسے لوگ بھی ووٹ ڈال رہے ہیں. آج بھی اگر ٹرن آؤٹ 55-60% پہ یہ قوم لے جائے نا, یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی دنیا کو میسج دینا چاہیے کہ بھائی ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں, 50 پہ بھی چلا گیا تو بڑا. اور آسما یہ دنیا کو میسج دینا چاہیے کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں اور ہم نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. یہ دیکھیے کہ آپ کا یہ ٹرن آؤٹ اس لیول پہ چلا گیا, تو یہ جتنی ساری گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ ہوا وہ ہوا, یہ پرابلم آئی وہ یہ سارے کے سارے بہ جائیں گی اس کے اندر, اس ایک ٹرن آؤٹ کے اندر. اگر آپ نے اس کو ایک نمبر سے, ایک جو روٹین نمبر ہے اس سے اگر 10, 15, 20, 25% اس کو ایکسٹرا کر. اور دوسری چیز یہ کہ آسما کل ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی امتحان ہے. بالکل,
अगर उन्होंने करैक्टर का मुजाहिरा Cool किया रहना है। और उन्होंने अपने नीचे के लोगों को भी इस बात पे किया कायल करना है, कि बिल्कुल। आप एक जमहूरी अमल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसे गैर जमहूरी ना होने बिल्कुल नहीं दें। बनाए, बिल्कुल। जैसे अभी मेरे किसी एक दोस्त को फोन आया कि जी उनका बेटा पोलिंग एजेंट बन रहा है तो उसे ना बनने दें उसको हम वहाँ से सबने उठा बैठ के यही मशवरा दिया कि ना ही बनने दें, because बहुत अगर हालात अब बात यहाँ तक चली गई है कि लोगों को फोन करके ये कहा जाए कि जी उसको पोलिंग एजेंट ना बनने दें, तो मेरा ख्याल है कल आलूदा ना करें इसलिए। अच्छा नाना साहब, कल हमारी यूथ का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसने फर्स्ट टाइम 18 साल का वोटर है, 18 साल का। लगभग 2 करोड़ के करीब वोटर्स वो हैं, हमारे लिए 2 बड़ी करोड़ से सपोर्टिव ज्यादा। बात है, और हमने उस यूथ को ये मैसेज देना है कि आपका बेसिक राइट और कौमी राइट आप इसे कल इस्तेमाल आपने पहला वोट कब डाला था? उन्होंने कहा सोए नहीं रहना, वोट डालना है, ये ना सोए रहे सारी रात वो आपके सोशल ऊपर चेक मीडिया करना चाह रहे हैं पहला वोट कब डाला। नहीं पूछा करते। नहीं मैंने ये पूछा कि पहला वोट आपने कब डाला था? मैंने पहला वोट जब डाला था जब खान साहब पहली दफा क्रेन से गिरे थे। चलो आप कैलकुलेट कर ले। भाई तुम्हारा आसमा का इसका वोट जो है ना, आसमा साहब बड़ा खतरनाक है, ये जख्मियों को वोट डालती है। जख्मियों को वोट डालती है, उसे इशारा भी कर दिया ना मलिक साथ साहब, में। मेरा है ना, अभी कहना चाह रही हूं मैं कैदियों को वोट डालूंगी। हाँ आपके कैदियों को डालने जा रही हैं आप वोट? अच्छा मलिक ना 420 नंबर वाले को नहीं डालना। सबसे ज्यादा पुराना विटनेस है, ये नहीं मतलब कि वो हमसे ज्यादा बूढ़ा है, वो जवान है माशाल्लाह। लेकिन इसने लाहौर की रंगीनियां इलेक्शन की देखी हुई है, जो असल ओरिजिनल लाहौर था, खूबसूरती थी। अच्छा इसमें एक कमेंट है मेरा अब जाते जाते, मैं समझता लाहौर को जितना जुल्फकार अली भुट्टो ने समझा ना, कोई नहीं समझा। भुट्टो ने फर्स्ट टाइम पंजाबी जुबान में गाली निकाली स्टेज पे, उसने कहा मैं शराब पीता हूँ, शलवार कमीज उसने पहनी, एक दफा कफ खोलता था, उसके जूते दिखाए गए, उसने कहा मुझे पता बड़ी महंगाई हो गई है, उसने कोट उतार दिया। ही वाज द फर्स्ट मैन, वो बलूचिस्तान गया, वहां पे ना एक छोटा सा एक मतलब गरीब आना जगह, वहां पे उसने चाय पी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हर लीडरशिप आज जितनी भी है, खान है, नवाज है, शहबाज है, ये जो कहते हैं ना अपना हबीब जाला वगैरह, शहबाज है, सब चीज के पीछे जुल्फकार अली भुट्टो है। और मैं समझता हूँ भुट्टो ने किया, भुट्टो के अंदर लाहौर की सोच थी या लाहौर के अंदर मलिक साहब अवामी लीडर यही होता है जो अवाम के साथ एसोसिएट होता है, उसकी नजर होती है। पीपल्स पार्टी को आज थोड़ा भी आप गौर उसका करें ना, नाम तो लेते हैं, पीपल्स यही पार्टी अवामी बेसिकली लीडर पंजाब की पार्टी थी। आप देखें पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा बनी यहाँ अक्सरियत पंजाब से ली, और सिंध के अंदर तो हमें 2-3 सीटों की अक्सरियत से पीपल्स पार्टी वहां पे जीती थी। यही पंजाब और है, और ये पंजाब की वजह से, लेकिन हमें दुख होता है जब हम मुफाहमत की सियासत और ये चीजें देखते हैं, पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही आप देखें पंजाब से फारग हो अच्छा गई। इस जनरेशन के लिए वो जो लफ्ज है ना कि आप अगर खंबा भी खड़ा कर दें तो जीत जाएगा, तो कौसर नियाजी थे पसरूर में कैद में थे, नोबडी साइम, किसी ने मिले नहीं थे, सिर्फ एक तस्वीर थी, एक बंदा जेल में है, पीपल्स पार्टी वो जीत गए, तो वहां से ये लफ्ज निकला। मलिक साहब आपको याद है मलेशिया कपड़ा था जिसे बड़ा ही कम कलर के समझा साथ, जाता था, कलर के साथ उसका एक जुल्फकार अली भुट्टो ने मलेशिया की शलवार कमीज पहनी, ये यहाँ से ये कफ खोले, यहाँ से 2 बटन खोले, और उसके बाद मलेशिया पूरे पाकिस्तान का लिबास, जो लीडर का करैक्टर है ना वो बोलता है, वो लोगों को लेके चलता है। बेनजीर साहिबा में भी था, बेनजीर साहिबा की जो ड्रेसिंग होती थी बड़ी सिंपल होती थी, इवन दो अपने वर्कर्स के साथ जाके जमीन पर बैठना। जब वो सानिया कारसाज हुआ था, हमने तब देखा था कि बीबी जो है उन्हें मना किया जा रहा था कि आप नहीं जाएंगी, सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन बीबी वेरी नेक्स्ट डे हमें लियारी में नजर आई, वहां अपने वर्कर्स के पास बैठी हुई नजर आई, और ऐसा ही कुछ एलिमेंट हमें आसफा में भी थोड़ा बहुत नजर आया। पंजाबी मैनरिज्म में ना नवाज शरीफ में भी है, बुजुर्ग को देखना, अब तो खुद वो बुजुर्ग है, मुझे अच्छी तरह याद है, कोई खातून नजर आई तो उनको माँ कह देना, वो है, ये चीजें भी, ये और अल्लाह ताला उन्हीं से लोगों ने लेनी है ना, पब्लिक ने वहीं से सीखना है। उनके ना कोई थोड़ा सा मैंने देखा है एज फैक्टर है, इसीलिए मरियम को आगे कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं। अब उस दिन जलसे में उन्होंने कहा कि मैं की कह रहा था, वो भूल गए, तो जाहिर एज फैक्टर है, लेकिन ये मोहब्बत का इजहार भी करते हैं जब आगे। अच्छा देखें है चूंकि वो कारोबारी है ना, पहले पूछते हैं कि डू यू लव मी, फिर अब वो कहते हैं आई लव यू टू, अगर वो कहें नहीं तो फिर कहते हैं ओड़ो पांडे जी, मैं भी नहीं करता, ठीक है ना, फिर मैं भी नहीं करता। तो शुक्रिया अदा करते, शुक्रिया अदा करते, और कल बताइए कि कल हमारी ट्रांसमिशन इलेक्शन ट्रांसमिशन जो है जी इंशाल्लाह कल फिर हम दोपहर में जरूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ऑनवर्ड्स ये चलेगी ट्रांसमिशन, और तबसरे तज्ज़िये इसी तरह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अभी तक के लिए इजाजत दीजिएगा, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।